Hello students, welcome to class 10th SST Geography Agriculture. The topic is food crops other than grains, presented by SJP. Children, let's summarize the topics. Sugarcane, type of crop, it is tropical and subtropical. Climate, hot and humid. Temperature, 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Annual rainfall, 75 centimeter to 100 centimeter. Features, it needs manual labor. India is second largest producer and major producer. It is UP, Maharashtra, AP, Karnataka, Tamil Nadu. Now we will discuss oil seeds. Main oil seeds are groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seed, cottonseed, linseed. India has second rank in the production of groundnut. Its features are: number 1, most of them are edible. Second, some used as a raw materials in production of soap, cosmetics, etc. And now we will come on another topic, that is tea. Its features: first feature is it is plantation agriculture. Second feature is it is an important beverage crop. Third feature is it needs tropical and subtropical climate, well drained, fertile soil and rich in humus and organic matter. Warm and moist free climate required. In this way, tea is very important beverage crop and it is required all over world because tea is a labor intensive industry. It needs cheap and abundant labor, skilled labor. Assam, Darjeeling, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala are major producer of tea. After tea, we will discuss another crop, that is coffee. Children, coffee is very important crop, beverage crop. Its features are: number 1, India's coffee is best in the world. Second, Arabica variety of India is most demanded. And along with this, in India, it is mostly grown in Nilgiri, in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Now let us the topic word by word from NCERT book in detail. Children, be attentive and open your NCERT book. Hello students, myself SJP. Today once again welcome in class 10th SST Geography, the chapter Agriculture. From this chapter today I am going to explain new topic, food crops other than grains, यानी अनाज के अलावा जो एडिबल है जिसे हम खाते हैं उसके अलावा कौन कौन से फूड क्रॉप्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट वन इज सुगर केन. इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह का क्रॉप है, मतलब जहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है ट्रॉपिकल एरिया में. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर. मीन्स इसका जो ग्रो होने के टाइम इसका जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होता है, यानी नमी होनी चाहिए. उस समय टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो. एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर.
और हमारा जो एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, और जहाँ कम बारिश होती है वहाँ इरिगेशन सिस्टम चाहिए होता है, जैसे पंपिंग सेट है, कैनाल है, या अदर फैसिलिटीज़ शुड बी अवेलेबल देयर। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग। यानी ये जो हमारा शुगर केन है, ये सॉइल की वैरायटी पर डिपेंड करता है, किस तरह की सॉइल में किस वैरायटी का शुगर केन लगाना है, और इसमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, खुद मेहनत करना पड़ता है, बुआई से लेकर के सोविंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक। इट नीड्स मैनुअल लेबर। इसके लिए अभी कोई मशीन नहीं है जिससे इसकी कटाई की जा सके। सो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, और इंडिया सेकेंड नंबर पे है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांडसारी एंड मोलासेस। यानी हमारा जो शुगर केन है, इससे हमारा चीनी बनता है, शुगर गुड़ बनता है जिसको जैगरी भी कहते हैं, खांडसारी बनती है जिससे अल्कोहल निकाला जाता है, मोलासेस इससे भी अल्कोहल निकाला जाता है। सो द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सो ऑन। इस तरीके से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, ये हमारे लार्जेस्ट एंड मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नाउ लेट अस डिस्कस ऑयल सीड्स। चिल्ड्रन, इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2014 का जो डाटा मिला था उसके हिसाब से जो है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली, यानी मूंगफली के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर प्रोड्यूसर है, जबकि चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ ग्राउंडनट। यानी मूंगफली के क्षेत्र में चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। इन रैप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2014। और एक आता है रेप सीड, ये इसका प्रोडक्शन जो है इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, उससे आगे कनाडा और चाइना आता है 2014 में। सो डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। इस तरीके से अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स ग्रो होते हैं हमारी कंट्री में, जो कि हमारे टोटल क्रॉप्ड एरिया का 12% है। So main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soyabean, castor seeds, cotton seeds, linseeds and sunflower। यानी जो मेन ऑयल सीड्स है जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होता है उनमें ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, नारियल, सिसमम, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स आता है, कॉटन सीड्स होता है, लिन सीड होता है और सनफ्लावर के सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से ये सब के सब हमें ऑयल सीड्स हैं जिससे हमें ऑयल मिलता है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। ज़्यादातर इनमें से खाने योग्य है, इट इज़ एडिबल, इसे हम खा सकते हैं, और कुकिंग में जो है खाना बनाते समय इसको मीडियम के रूप में यूज़ करते हैं। हाउएवर some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments। इनमें से कुछ हमारे ऑयल सीड्स जो है ये रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ होते हैं, और ये ख़ास तौर से साबुन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, ऑइंटमेंट्स आते हैं मलहम टाइप से, इन सब में जो है ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं हमारे ऑयल सीड्स। Now groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oil seeds produced in the country। तो मूंगफली जो है ये खरीफ क्रॉप में आता है, और ये जो है हमारे जितने भी ऑयल सीड्स हैं उनमें पूरे का आधा प्रोडक्शन मूंगफली से होता है।
So Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan and Tamil Nadu in 2015-16. तो गुजरात जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मूंगफली के तेल का, उससे आगे राजस्थान और तमिलनाडु भी है। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। इसी तरह लिनसीड और मस्टर्ड, ये जो तिल का तेल, मस्टर्ड, सरसों, ये सब रबी क्रॉप में आता है, और बाकी जो हमारा ग्राउंड नट है वो खरीफ क्रॉप में आता है। क्वेश्चन कैन बी पुट अप ऑन दिस पोर्शन। सो ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड linseed and mustard are rabi crops. Sesamum is a kharif crop in north and rabi crop in south India. नॉर्थ में जो सीसेमम होता तिल, ये खरीफ क्रॉप माना जाता है, और साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप के रूप से जाना जाता है। सो कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। इसी तरह कैस्टर सीड, अरंडी का तेल होता है, वो जो है रबी और खरीफ क्रॉप दोनों रूप में जो है इसे प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस टी, चाय पत्ती। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी का जो कल्टीवेशन है, इसकी जो खेती है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है। सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। और ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप है जो हमारे टेंशन को दूर करता है, और इसको जो है ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ये पहले इंडिया में नहीं होता था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। आज ज़्यादातर टी प्लांटेशन का काम जो है इंडियंस के हाथों में है। सो द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इंडाउड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो हमारा जो टी प्लांट है कहाँ पे ग्रो होता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वाले एरिया में, जहाँ पे बहुत ही डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, और वहाँ पे पानी भी आता हो खूब। रिच इन ह्यूमस, उसमें ह्यूमस की भी मात्रा अधिक होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर के मामले में भी रिच होना चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। तो टी जो है एक बुश है, बुशेस है, ये झाड़ी के रूप में माना जाता है, जिसे गर्माहट भी चाहिए और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट भी चाहिए, नमी हो लेकिन शीत ना पड़े, एंड और पूरे साल भर ऐसा चाहिए। सो फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। अक्सर जो वहाँ बारिश गिरती है, ये जो है पूरी तरह से वहाँ पे एक कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ देता है, और जो टेंडर लीव्स है, इसकी जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, इसका लगातार विकास होता रहता है। सो टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। चाय जो है इसमें भी लेबर की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। इसमें प्रचुर मात्रा में सस्ते और स्किल्ड, बहुत कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेट अस सी these peoples, he is growing groundnut in his hand, he is having groundnut, and here this is sunflower farming, and this man he is also working in sunflower field. So we can say that it is a labor intensive sector. So this picture represents tea cultivation. Some tall trees are grown, and this whole greenery portion, it shows tea bushes. So tea is processed within the tea garden to restore its freshness. वहाँ पे एक टी गार्डन बने होते हैं ताकि उसकी फ्रेशनेस, उसकी ताजगी जो है स्थापित रहे, और मतलब उसकी ताजगी ख़त्म ना हो। सो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इस तरीके से मेन जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उनमें असम, दार्जिलिंग के हिल्स, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला आते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब टी प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। यहाँ टी खूब प्रोड्यूस होता है। सो इन 2014 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना।
तो चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू 2014 डाटा। नाउ वी विल डिस्कस कॉफ़ी। इन 2014 इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। 2014 में इंडिया ने 3.5% पूरे वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन का इन्होंने प्रोडक्शन किया। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडिया की कॉफ़ी पूरी दुनिया में एक गुड क्वालिटी के रूप में मानी जाती है, अच्छी क्वालिटी है इसकी। सो द अराबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो एक वेराइटी है जिसका नाम है अरबिका वेराइटी, वो ख़ास तौर से यमन से जो है शुरू में लाया गया था और आज उसको प्रोड्यूस किया जाता है हमारी कंट्री में। सो दिस वेराइटी इज़ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कॉफ़ी की ये वेराइटी अरेबिका वेराइटी उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन was introduced on Baba Budan Hills and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. So इस वेराइटी का जो हमारा अरेबिका वेराइटी है इसका जो एक हमारी डिमांड है सबसे ज़्यादा है और इसका कल्टीवेशन जो है ये बाबा बुडान हिल्स में इसको इंट्रोड्यूस किया, वहाँ सबसे पहले उगाया गया। एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो नीलगिरी हिल्स पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ नीलगिरी हिल्स, वहाँ पे टी कल्टीवेशन लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। Horticulture crops means where fruits are grown. In 2014, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. 2000 के अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के मामले में, सबसे फर्स्ट है चाइना। सो इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स का एक अच्छा प्रोड्यूसर है। सो मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चिरापुंजी, बनाना ऑफ केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी एंड बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over. तो इस तरीके से भी हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा मैंगो है, आम, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन राज्यों में होता है सबसे अच्छा, यहाँ तक कि यूपी और वेस्ट बंगाल में भी। उसके बाद जो है नागपुर और चिरापुंजी का ऑरेंज, चिरापुंजी मेघालय में है, उसका जो ऑरेंज है ये काफ़ी पॉपुलर है और सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है। यानी ऑरेंजेस का प्रोडक्शन नागपुर और चिरापुंजी में और मैंगोज़ का प्रोडक्शन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल इन जगहों पर होता है। एंड जो बनाना है, केला, ये आपका केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है केला, एंड तमिलनाडु में भी होता है। इसके अलावा लीची और गुआवा, लीची और अमरूद, ये यूपी और बिहार के लिए बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लीची और गुआवा का, अमरूद का यूपी और बिहार में होता है। उसके बाद पाइनएप्पल, अनानास जिसको कहते हैं, ये जो है मेघालय का सबसे पॉपुलर वेराइटी है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मेघालय में पाइनएप्पल का। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का अंगूर बहुत पॉपुलर है। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकोट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेब, नाशपाती, एप्रिकोट, अखरोट, वॉलनट्स, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का ये वैरायटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी है।
So we can say India produces about 13% of the world's vegetables. पूरी दुनिया में जो वेजिटेबल उगाई जाती सब्जियां, इंडिया उस पूरे टोटल का 13%, अगर टोटल 100 है तो उसमें 13 पार्ट इंडिया वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी. इंडिया जो है मटर, इसका इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है. कॉलीफ्लावर जो है हमारा जो फूल गोभी है. ओनियन, यू नो वेरी वेल. कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, इन सब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इंडिया है. So from these pictures it is clear that apricot, apple and pomegranate means anar, it is pomegranate, and these proportions apples, apricots, and after that here vegetables are grown in this portion. We can say that various types of cultivation of pea, मटर, ये मटर का कल्टीवेशन हो रहा है यहाँ पे. और हियर वेजिटेबल्स बहुत तरह के हैं. और कॉलीफ्लावर, बंद गोभी, आपका टमाटर, ब्रिंजल, बैगन, ये ऑल दिस थिंग्स दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स.